we have done with the nervous control. Now we will take up another topic which is called chemical control. I have already told you about the glands. What is a gland and what are the types of gland? Let me remind you again. One is endocrine gland, the gland which secretes hormones. Another is exocrine gland, the gland which secretes enzymes. Third one we have heterocrine gland, the gland which secretes both enzymes as well as hormones. Now let us take the first gland, as thyroid gland. First of all, let us take its location. Where it is located? ये होता कहाँ पे है? So Jigar, let me draw this as trachea. Over this red color is esophagus. This is trachea, and this one is food pipe or esophagus. Thyroid gland is bilobed gland. दो हिस्से इसके होते हैं. Like this. This is a bilobed gland. There are two divisions of thyroid gland. अगर आपसे पूछेंगे कि थायराइड ग्लैंड होता कहाँ पे बेटा, आगे वाले हिस्से को बोलते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर. तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है, ये इसके इधर साइड होता है. इधर साइड, इस साइड एक दो, इस साइड दूसरा दो. सो इट इज लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया. पहला पॉइंट, इट इज लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया. नंबर वन पॉइंट. Number second point, Jigar, the point or the band which joins, which connects the bilobed gland, this blue one, this is called isthmus. What is isthmus? It is the transverse band, transverse, like this, transverse band which connects the lobes of thyroid gland. Number one. Number second point लिखूंगा मैं, it is connected by a transverse band called isthmus. Number third point, अगर आप ये शक्ल देख रहे हैं बेटा, it looks like H. Alphabetically it looks like H. So it is also called a H-shaped gland. It is also called H-shaped gland. और अगर आप बटरफ्लाई को देखेंगे और बाद में इस ग्लैंड को देखेंगे, so it also looks like a butterfly. इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं. It's also called butterfly gland. Butterfly gland. Number one, we have discussed that thyroid gland is located on either side of trachea, either or either, whatever you pronounce. Number one, it is connected by a transverse band called isthmus. Number third point, it is also called H-shaped gland. And number fifth point,
or it's also called butterfly gland. Number 5th, it is the largest endocrine gland. एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं उनमें से ये लार्जेस्ट ग्लैंड है. So you can get the neat question also here. Which is the largest endocrine gland? Your answer would be thyroid gland. Number 6th point. Its weight is approximately 25 grams. So ये हो गई इसकी लोकेशन, इसका साइज, इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. और एक बात और लिखेंगे हम 7th पॉइंट. इट इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड. इट इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड. I hope you understood this. Now let us move towards the anatomy of thyroid gland. Let us take the anatomy, internal structure of the thyroid gland. Anatomy of thyroid gland. Number 1, the covering of thyroid gland. I am drawing the covering of thyroid gland. This is called fibrous capsule. So there is a covering of thyroid gland called fibrous capsule. This is it is inside the fibrous capsule. There are spherical, very large spherical structures inside the fibrous capsule. These spherical structures, I must write it over here. Spherical structures होती हैं इसमें, जिनको हम thyroid follicles कहते हैं. There are spherical structures called thyroid follicles. Thyroid follicles. और मैं बता दूं आपको, थायराइड फॉलिकल्स के अंदर या जिन सेल्स के बने हैं, थायराइड फॉलिकल्स जिन सेल्स के बने हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिनल सेल्स. दिस ग्रीन वन. सर फिर से मैं बोल दूं, fibrous capsule is the covering of thyroid gland. थायराइड फाइब्रस कैप्सूल के अंदर होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जिनको हम थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं. और थायराइड फॉलिकल एक जो है वो बने हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के, जिनको हम बोलते हैं एक्टिनल सेल्स. बाद में मैं बताऊंगा एक्टिनल सेल्स का काम क्या होता है. बेटा इसको मैं यहाँ रोक दूं, मैं आपको बता दूं ऑरिजिन ऑफ थायराइड ग्लैंड. मैं भूल गया बोलना आपको, ऑरिजिन ऑफ थायराइड ग्लैंड. ऑरिजिन ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या है सर? व्हाट इज ऑरिजिन? जब हम लिखते हैं टिश्यू, हम लिखते हैं group of cells performing same functions and having same origin. What is the same origin? either embryo के पास हमारे पास होती हैं 3 germ layers. We do have 3 germ layers. embryo के पास.
अंदर वाली लेयर जर्म लेयर एंडोडर्म कहलाती है, बीच वाली मीजोडर्म और बाहर वाली एक्टोडर्म कहलाती है। मतलब सेम ऑर्गन का मतलब हुआ क्या, होता क्या है? अगर ये हमारी आई है, अगर इसकी एक सेल एक्टोडर्म से बनी, इसका मतलब सारी सेल्स एक्टोडर्म से होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड सेम ऑर्गन। इस थायराइड ग्लैंड का ऑर्गन है एक्टोडर्म। तो थायराइड ग्लैंड बना है आउटर मोस्ट जर्म लेयर से, जिसका नाम है एक्टोडर्म। ये चीज याद रखेंगे। एम्ब्रियो के पास पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। जो एम्ब्रियो होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 germ layers and the germ layers are like this: endoderm, mesoderm and ectoderm. That will draw this in circles. This is ecto, this is meso and this is endo. इस तरह आप लिख सकते हो, अलग अलग कलर से आप इसको बना सकते हो। सो मैं एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ। फाइब्रस कैप्सूल के नीचे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं, और थायराइड फॉलिकल्स के अंदर स्पेशल सेल्स हैं हाइडर, जिनको हम एकीनल सेल्स बोलते हैं। एकीनल सेल्स जो बीच में रह गया, ये बीच में मैं ऐसे बता दूं, दिस इज कॉल्ड, इन सेल्स को कनेक्ट कौन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इनके बीच में है बेटा, जो इनको कनेक्ट कर रहा है। दिस ब्लैक इज अ कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड व्हिच कनेक्ट्स ऑल द थायराइड फॉलिकल्स। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, इनके बीच में कहीं कहीं पे होते हैं इधर स्कैटर्ड सेल्स। इस तरह स्कैटर्ड सेल्स होती है। यहां पे मैं रख दूं सेल्स, यहां पे मैं रख दूं सेल्स, यहां पे मैं रख दूं सेल्स। इसी कनेक्टिव टिश्यू में कुछ और सेल्स होती है स्कैटर्ड, छक्रित। इनको हम बोलते हैं parafollicular cells. These are called the thyroid follicles, and these cells which are scattered in the connective tissue are called parafollicular cells. मैं एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात कर रहा हूं। So again, covering or membrane of thyroid gland is fibrous capsule. Under fibrous capsule there are spherical structures which are called thyroid follicles. In thyroid follicles there are special cells called achinal cells, and the cells are connected by a fluid that is called connective tissue. In connective tissue there are some special cells also scattered which are called parafollicular cells. So it was the anatomy. Inside this thyroid follicle also there is a mass like substance. The mass is called colloid. It is called a colloid. तो मैं बता दूं बेटा, एकिनल सेल्स का काम क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स का काम क्या है, और इस कोलॉइड का काम क्या है। So it was anatomy of thyroid gland. Let us move towards the secretions. Secretions of thyroid gland. Thyroid gland secretes two hormones. One is called thyroxine
called थायरोकैल्सिटोनिन। इसको आप शॉर्ट में कैल्सिटोनिन भी लिख सकते हैं। You can write it in short calcitonin. सर थायरोक्सिन का काम क्या है? पहला पॉइंट है इधर, अभी मैं एनाटॉमी में बोल रहा था, एक्टिनल सेल्स होती है थायराइड फॉलिकल्स में, तो थायरोक्सिन जो है इट इज सेक्रेटेड बाय दोज एक्टिनल सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन थायराइड फॉलिकल्स। सो पहला पॉइंट, थायरोक्सिन इट इज सेक्रेटेड बाय एक्टिनल सेल्स, जो अभी बोला हमने। नंबर 1 पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन मतलब इसके पास 65% आयोडीन होती है। इस थायरोक्सिन की फर्दर 2 डिवीजन है। इट हैज फर्दर 2 डिविजन्स, फर्दर 2 डिविजन्स are 2 types, 2 classes। पहला जिसको बोलते हैं T3 और दूसरा जिसको बोलते हैं T4। T3 and T4 depends upon the iodine content। T3 की फुल फॉर्म है हाइड्रो ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोनाइन। इसके पास 10% आयोडीन होती है। और T4 की फुल फॉर्म है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसके पास 90% आयोडीन होती है। तो मतलब इधर जिसके पास आयोडीन की परसेंटेज कम है वो जल्दी अपनी सेक्रेशन सेक्रेट करेगा, अपना हार्मोन जल्दी सेक्रेट करेगा, उसको बोलते हैं लैग पीरियड। सो लैग पीरियड ऑफ T3 इज 2 to 3 days। मैं यहां लिख दूं लैग पीरियड ऑफ T3 वो 2 से 3 दिन होता है। जल्दी इसकी सेक्रेशन निकल आती है। और जो T4 है, T4 का लैग पीरियड होता है 6 से 8 दिन तक, बिकॉज ऑफ द आयोडीन कंसंट्रेशन। ये बात हो गई कि कौन से हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। अब हम पहले फंक्शंस पढ़ेंगे, बाद में डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। फंक्शंस इनकी क्या है? तो लेट अस टेक द फंक्शंस। Number 1, it regulates BMR, basal metabolic rate. It regulates BMR. Sir, what is BMR? Basal metabolic rate। बार मैं बोल चुका हूं आपको, एनाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक
एनाबॉलिक मीन्स कंस्ट्रक्शन, बनना, सेल्स का बनना। कैटाबॉलिक मीन्स सेल्स का मरना, डिस्ट्रक्शन होना। दोनों को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक हो गया कंस्ट्रक्शन, कैटाबॉलिक हो गया डिस्ट्रक्शन, दोनों को एक साथ बोलेंगे मेटाबॉलिक। तो ये मेटाबॉलिक रेट जो है उसको रेगुलेट करता है। मतलब उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा ब्लड शुगर, तो ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। उसमें आएगा बेटा ब्लड प्रेशर, तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सर उसमें आएगा बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सर फिजिकल ग्रोथ, PHYSICAL, फिजिकल ग्रोथ को ये मेंटेन करता है, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होता है, फिजिकल ग्रोथ। इट मेंटेन्स मेंटल ग्रोथ, आपका दिमाग सही है, ये थायराइड ग्लैंड की मेहरबानी है। आपका दिमाग कितना शार्प है, ये थायराइड ग्लैंड की मेहरबानी है। सो एक और पॉइंट, इट रेगुलेट्स सेक्सुअल ग्रोथ आल्सो, सेक्सुअल ग्रोथ आल्सो। एक और पॉइंट, इट वर्क्स ऑन किडनीज, ये किडनीज पे भी काम करता है। वर्क्स ऑन किडनीज। बहुत सारी फंक्शंस हैं, लेकिन आपके लिए काफी हैं। ब्लड शुगर मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, वर्क्स ऑन किडनीज, और इवन हार्ट रेट को भी ये मेंटेन करता है। इट रेगुलेट्स ऑल्सो हार्ट रेट। लेट अस मूव टुवर्ड्स द disorders of thyroid gland. Disorders. Disorder. We do have two types of disorder. One is either hypothyroidism. Hypothyroidism. Hypo means less secretion of thyroid gland of thyroxine, and again we have hyperthyroidism. अगर जिगर थायरॉक्सिन की सेक्रेशन कम निकली तो कौन सी डिजीजेस एक इंसान में हो सकती हैं? पहला, विच इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। दूसरा, मिक्सिडीमा और मिक्सोडीमा। तीसरा, सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर, इसको एंडीमिक भी कहते हैं, सिंपल गॉइटर। ये तीन चीजें होंगी हाइपोथायराइडिज्म से। मैं इनको डिस्कस करूंगा। जो ये वाला है हाइपर, अगर इसकी सेक्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा? तो दो चीजें होंगी। एक होगा एक्सोथैलेमिक गॉइटर। Exothalamic goiter. There is much difference in between simple goiter and exothalamic goiter. Number one. Number second is Hashimoto's disease. Moto's disease. आपका क्वेश्चन था, पहले मैं उसी को कर दूं। आपका क्वेश्चन था थायरोकैल्सिटोनिन का काम आपने सब बताया नहीं। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा? देखो बेटा, इसका काम है जब हड्डियों में या जब हमारे खून में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है तो पैराथायरॉइड ग्लैंड हड्डियों में से कैल्शियम ला के खून में बराबर कर देता है। लेकिन
थायरोकैल्सिटोनिन का काम है हड्डियों का कैल्शियम हड्डियों में ही रहने देता है, इसको एक सप्रेस करता है, बिल्कुल रोकता है, इसको एक खून में आने नहीं देता है, ये काम है इसका। सो इट सप्रेसेस कैल्शियम फ्रॉम बोन, ये हड्डियों में ही उसको रहने देता है और उस कैल्शियम को खून में आने नहीं देता है। अगर ऐसा नहीं करेगा है तो हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी और नतीजा निकलेगा आर्थराइटिस होगी, जॉइंट पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं बाद में। सो क्रेटिनिज्म क्या है? क्रेटिनिज्म बेटा होता है इन्फेंट्स में, बच्चों में, यानी कि जब थायरोक्सिन की सेक्रीशन कम निकलेगी तब क्या होगा, तब बच्चों में जो भी, पहला पॉइंट मैं लिखता था ब्लड शुगर, इनमें होगा लो ब्लड शुगर, क्योंकि ब्लड शुगर मेंटेन करना था इसका, अब इसकी सेक्रीशन कम है तो ब्लड शुगर कम होगा। बच्चों में पाया जाएगा लो बॉडी टेम्परेचर, जितने भी आपने फंक्शन लिखे हैं उसका लो लिखते जाओ। लो हार्ट रेट, इस बच्चे की मेंटल ग्रोथ जो है वो कमजोर होगी, इसका मेंटल कमजोर होगा, ये मेंटली रिटार्ड होगा, मेंटली रिटार्ड। एमएस आर्ट्स में याद रोजान खास की, और इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ये छोटे कद का रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। तो स्टंटेड ग्रोथ होगी इसके पास, स्टंटेड ग्रोथ। और सामने यहां पे चेस्ट जो है इसका फूलेगा, इसका चेस्ट फूलेगा, जिसको पिजन्स चेस्ट बोलते हैं, वो चीज होगी। और इसकी जो बेली है, पेट, इसका बिल्कुल पेट बाहर बड़े ज्यादा नेवर नहीं आ रहा, और उसकी आंखें बिल्कुल प्याले जैसी होगी, जिसको बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आईज, इसमें होगी प्रोट्रूजन ऑफ आईज, यहां मैं लिख दूंगा प्रोट्रूजन ऑफ आईज। अब यही डिसऑर्डर, यही प्रॉब्लम अगर बड़ों में होगी तो उसको मिक्स्ड एडीमा कहते हैं। सेम सिम्टम्स, हालांकि स्टैंडर्ड ग्रोथ तो नहीं होगी क्योंकि वो लोग बढ़ चुके होंगे, लेकिन लो ब्लड शुगर, लो ब्लड प्रेशर, जिसका लो ब्लड प्रेशर होगा उसका हमेशा नौजिया होगा, चक्कर आते रहेंगे, उसकी वॉमिटिंग होती रहेगी, उसकी ब्रीथलेसनेस होती रहेगी, सांस का फूलना होगा, लेकिन स्टैंडर्ड ग्रोथ तो नहीं होगी। तो अगर हम मिक्स्ड एडीमा हाइडर बोलेंगे तो आप बोलेंगे इट इज फाउंड इन अडल्ट्स, सेम सिम्टम्स होंगे, सेम निशानियां होंगी, लेकिन बड़ों में। तो बच्चों में इसका नाम क्रेटिनिज्म है और बड़ों में इसका नाम मिक्स्ड एडीमा है। अब लास्ट है सिंपल गोइटर, दिस इज बेटा और नेक रीजन, और नेक रीजन का यहां पे स्वेलिंग करना, और वो कैसे होता है, एनलार्जमेंट ऑफ नेक रीजन होता है, वो होता है एक्टिनल सेल्स के अंदर स्वेलिंग होती है। एक्टिनल सेल्स जो वारम खसान तने से चीज गर्दन नेरा नेवर, तो उसी को हम सिंपल गोइटर बोलते हैं। तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ एक्टिनल सेल्स, it is caused due to the swelling of actinal cells। ये उनमें ज्यादा पाया जाता है जो आयोडाइज्ड साल्ट का इस्तेमाल कम करते हैं। नाउ अब यहाँ पे होगी हाइपरथायरॉइडिज्म की बात। अब अगर इसकी सेक्रेशन ज्यादा होगी, थायरोक्सिन की ओवर सेक्रेशन होगी, तो क्या होगा, एक्सोथैलेमिक गोइटर होगा। सर व्हाट इज द सिम्पटम ऑफ एक्सोथैलेमिक गोइटर?
ये जो थायरॉक्सीन है ये बिल्कुल आंखों के पीछे जमा हो जाएगा। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड बिहाइंड द आईज। थायरॉक्सीन इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, जमा होना, थायरॉक्सीन का जमा बिहाइंड द आईज। नतीजा निकलेगा आंखें जो है बिल्कुल बाहर निकलेगी, बाहर बड़ी बड़ी आंखें बनेगी इसकी, क्योंकि उनके पीछे थायरॉक्सीन की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है। तो नतीजा निकलेगा इसकी प्रोट्रूजन होगी ऑफ आईज। अब लास्ट में है हशीमोटोस डिजीज। देखो बेटा, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ऑटो इम्यून सिस्टम रखा है। जब थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है तो ये इसको ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज करता है। उसी को हम, ताकि बाकी चीज़ें बच जाए, उसी को हम हशीमोटोस डिजीज कहते हैं। जब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम पाई जाएगी तब एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म जिस्म के अंदर होता है जो इसको ऑटोमेटिकली डैमेज करता है। उसको हम बोलते हैं, उस डिजीज को, जब थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, हशीमोटोस डिजीज। थैंक यू वेरी मच।